So the question is from arithmetical progression. The question is the sum of the n term is given you 4n minus n square. Then find out s1 sum of first term, s2 sum of second term, and a2 that means the second term, then a10 that means the 10th term, and an that is the nth term is given as what. So let's see the question how it will be done. So before proceeding toward the question, let us learn about the concept of the sum series and an AP first of all. Then we will solve the question further. Let's see the concept on which the question is based on. Let us consider an AP where A1, A2, A3 are the terms of an AP. I can say that A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term, and till AN. A1 is what? A1 is the first term, it is denoted as first term A. A2 is what? A2 will be A plus D. A3 will be what? A3 will be A plus that is 2D. As it is, अगर मैं AN की वैल्यू पता करना चाहता हूँ then how it will come? See, A3 था तो 2 will come, 2 then 1 is coming. So at the place of n, what it will be there? A plus n minus 1 into D. So this is clear that from where the formula is origin, an equal to a plus n minus 1 into D. We can see this formula. Know a1, a2, a3 till an, it is clear. Know if the sum series can be written as s1, s2, s3 till sn. So what actually this will be? Now see, if I am writing an example 1, 2, 3, 4, 5 till dash 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 10. So 1 will be the first term and whether check it whether ये AP में है या नहीं. 2 minus 1 1 आ रहा है, 3 minus 2 1 आ रहा है, 4 minus 3 1 आ रहा है, 5 minus 4 1 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन इट विल बी इन AP. तो ये बात क्लियर है कि ये एक AP हो. यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म रहेगा ये A1 रहेगा, ये आपका रहेगा A2, ये A3 एंड टिल डैश 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 I can say AN because I don't know the number of term here, so it will be always denoted by the AN. I can say that. Now what about S1, S2, S3 and dash 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 till SN. अब A और S में रिलेशनशिप देखो. S अगर मैं सम ऑफ वन टर्म बोलूंगा तो सम ऑफ वन टर्म तो 1 ही आएगी. अगर मैं सम ऑफ टू टर्म बोलूंगा मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2, मतलब ये क्लियर है कि S1 क्या हो जाएगा मेरा A1. अगर मैं बात करूंगा S2 के तो S2 विल बी व्हाट? सम ऑफ टू टर्म मतलब A1 प्लस A2. दिस इज व्हाट आई वांट. अगर मैं S3 लेता हूं देन S3 इज व्हाट? सम ऑफ वन टर्म प्लस टू टर्म प्लस थर्ड टर्म. अगर मैं S5 की बात करता हूं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. दिस इज व्हाट द सम ऑफ टर्म्स इज. नो व्हाट यू विल सी. देखो S1 इज व्हाट S1 यू हैव फाइंड इट आउट A1 हुआ. ठीक है, आपका ये एक बात क्लियर हुआ. अब S2 क्या होगा आपका? S2 जो रहेगा वो रहेगा आपका A1 प्लस आपका A2. ये भी आपको बात क्लियर है. ठीक है. नो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस वन. सो S2 माइनस S1 विल बी व्हाट? दैट इज A1 प्लस A2 माइनस A1. तो A1 and A1 will get cancelled, so it will be what? A2. So S2 minus S1 is what? A2. Means it is clear to you अगर A1 आपका S1 है और A2 आपका S2 minus S1 है. This two formula we will be using in the question, that is A1 is S1 and A2 is S2 minus S1. So let's start the solution of the question. So in the question what is asked to you is S1, S2, A2, A3, A10 and AN. और अभी आपने फॉर्मूला ये सीखा है कि A1 is S1 और A2 is S2 minus S1 and the Sn is given as 4n minus n square. So let's do the solution of it. n की जगह मैं पुट करता हूँ 1. So it will be S1 will be what? 4 into 1 minus 1 square. तो यहाँ से आएगा 4 minus 1 मतलब 3. ये मेरा S1 की वैल्यू मैंने निकाल ली. Now I will find n equal to 2. Okay? S2 n की जगह 2 पुट करा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर आया. ठीक, 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4. यहाँ पर बचेगा आपका 4. सो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ S2 ऑल्सो. नो सी दिस, S1 आ गया, S2 आ गया, मीन्स बोथ आर डन. नो A2 इज व्हाट?
व्हाट इज नोन, सी आपको फॉर्मूला क्या क्या पता था, ये आपका फॉर्मूला ऑलरेडी पता था। A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, सो A2 आपका आ जाएगा S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू क्या थी आपकी 4 एंड S1 वाज व्हाट 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा ये 1, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अब आपको A3 निकालना। A3 इज व्हाट, A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू आपकी क्या थी, A वॉज व्हाट, A वॉज S1, ठीक है, A आपका S1 था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A इज S1 इक्वल्स टू कितना है 3, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू और, A S1 था और 3 थी, A वॉज 3 और 2 इंटू D की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, सो D की वैल्यू मैंने निकाली A2 माइनस A1 से, और A2 कैसे आया, A2 की वैल्यू 1, A1 मतलब 1 3, ये आ जाएगा आपका -2, आपने D की वैल्यू निकाल ली -2। ओके, तो ये -2 आया, 2 2 जब 4 आ जाए, प्लस माइनस माइनस, और ये 3, तो 3 माइनस 1 4 कितना हो जाएगा, ये -1, मतलब आपने A3 की वैल्यू निकाल दी। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट, A10 क्या होगा, A प्लस 9D। ओके, A इज व्हाट 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू क्या है, -2 है आपकी, तो 2 9 जा 18, तो 3 माइनस 18 विल बी वॉट -15। ओके, ये आपकी A10 की वैल्यू आ चुकी है। नो द लास्ट थिंग इज लेफ्ट, आपको करना क्या है, आपको AN निकालना है, ठीक है। सो nth टर्म कैसे देंगे, AN फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था मैंने, AN इक्वल्स टू वॉट, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो A इज वॉट, A की वैल्यू क्या थी आपके 3 थी, एंड n विल बी लाइक दैट ओनली, है ना, यू डोंट पुट एनीथिंग एट द प्लेस ऑफ n, क्योंकि AN की ही टर्म वैल्यू निकाल रहे, एंड D इज वॉट -2। सो यू सॉल्व दिस, 3 -2 इंटू n विल बी -2n एंड माइनस माइनस +2, सो ये आ जाएगा 3 4 5 5 माइनस आपका 2n। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ AN ऑल्सो। सो सी S1 is 3, S2 is 4, okay, A2 is 1, A3 is -1, A10 is -15 and AN is 5 minus 2n। What you do in the question ना, आपसे जो कुछ पूछा गया है वो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करना। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन। ओके, so this is the solution of the above question।